Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel Creative Chemistry and Medical Education. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ چینل کریٹیو کیمسٹری اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، جس میں آپ دیکھ سکیں گے بہت سے میڈیکل کورسز اور میڈیکل سبجیکٹ کے بہترین ویڈیو لیکچرز۔ ہر نئی ویڈیو سے اپڈیٹ ہونے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پہلے پریس کریں اور پھر آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے منقسمہ صفوف کی تیاری پر مختصراً نوٹ لکھیں، یا کویشچن یوں آ سکتا ہے رائٹ بریف نوٹ آن ڈیوائڈڈ پاؤڈر، یا رائٹ بریف نوٹ آن پریپریشن آف ڈیوائڈڈ پاؤڈر، کہ اس کی پریپریشن کیسے کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ 1 نمبر کی ڈیفینیشن ہے، وہ سن لیں، میں نے یہاں پہ لکھی نہیں ہے، وہ سن لیں کہ یہ منقسمہ صفوف یا ڈیوائڈڈ پاؤڈر کسے کہتے ہیں۔ وہ صفوف جس کو طبیب یا ڈاکٹر اس کی ایک ہی خوراک کاغذ میں یا دھاتی تہ میں لپیٹ کر مریض کو دیتا ہے، منقسمہ صفوف یا ڈیوائڈڈ پاؤڈر کہلاتا ہے۔ دوبارہ تعریف کو سنیں کہ یہ منقسمہ صفوف کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ صفوف، یعنی کہ ایک سائڈ پہ ہے ڈاکٹر، میڈیسن کی بات ہو رہی ہے، ایک سائڈ پہ ڈاکٹر ہے، دوسری سائڈ پہ مریض ہے۔ تو مریض، وہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ مریض کو ڈاکٹر ایک پاؤڈر پڑیا میں ڈھانپ کے دیتا ہے، پڑیا پاؤڈر تھوڑا سا ڈالا کاغذ میں، کاغذ کو بند کیا، پڑیا بنا کے مریض کو حوالے کر دی، اسے ہی کہتے ہیں ڈیوائڈڈ پاؤڈر، منقسمہ صفوف۔ تو اس کی تعریف کیسے کریں گے، آپ کیسے لکھیں گے کہ وہ صفوف جس کی ایک ہی مکمل خوراک طبیب یا ڈاکٹر کاغذ میں یا دھاتی تہ میں لپیٹ کر مریض کو دیتا ہے، منقسمہ صفوف کہلاتا ہے یا ڈیوائڈڈ پاؤڈر کہلاتا ہے۔ یہ ہوگی اس کی ڈیفینیشن۔ اب ہے اس کی تیاری کا طریقہ کہ اس کو تیار کیسے کریں گے، تو یہ ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں، بہت اہم ہے، یہ سابقہ پیپر میں آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ منقسمہ صفوف کی تیاری یا پریپریشن آف ڈیوائڈڈ پاؤڈر، کہ اس کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ اس میں سے میں نے کچھ لائنیں اور پوائنٹ علیحدہ سے بنا دیے ہیں، یہ پوائنٹ آپ اس طرح سے یاد رکھیں، اسی ترتیب سے یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے یاد رکھنا بہت آسان ہوگا۔ اب دیکھیں پہلے نمبر پہ میں نے یہ پوائنٹ بنا دیا ہے صفوف کو تیار کرتے وقت ادویات کی خصوصیات کو مد نظر رکھنا چاہیے، کہ صفوف کی جو خصوصیات ہیں، پراپرٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب تیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہ وجہ کیا ہے کہ خصوصیات کو مد نظر کیوں رکھنا چاہیے، اس کی وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ صفوف کے ملاپ کے بعد طبعی خصوصیات متاثر ہوتی ہیں، یعنی ٹھوس ہو سکتی ہیں۔ میں ایگزامپل اس کی اس سے ہٹ کے، یہاں پہ نہیں، اس سے ہٹ کے ویسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ گھروں میں ہوتا ہے آٹا، فلور، تو اگر اس کو نمی والی جگہ پہ یا کوئی نمی والی چیز اس میں چلی جائے یا پانی چلا جائے تو وہ کچھ دیر کے بعد کیا ہو جائے گا، ٹھوس ہو جائے گا، جم جائے گا، اس کا جس طرح پیڑا بن جاتا ہے یا جم جائے گا، اس کے ڈھیلا سا بن جائے گا۔ وہی بات بتا رہا ہے کہ صفوف کی تیاری کرنی ہے۔ منقسمہ صفوف کا مطلب ہے ایک صفوف 2 چیزوں کو ملانا ہے، 2 قسم کے پاؤڈر ہیں، اس کو ہم نے ملانا ہے۔ تو ملانے سے پہلے صفوف کو ملاپ کے بعد کہتا ہے طبعی خصوصیات متاثر ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹھوس ہو سکتا ہے۔ بالکل ایک پاؤڈر ہے، دوسرا پاؤڈر ہے، اس کو اگر ہم نے ایسا ملا دیا کہ جس کے اندر کوئی نمی والی چیز موجود ہے یا آئلی ہے یا چکنائی ہے، تو وہ صفوف دوسرے صفوف کے ملنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا، ٹھوس ہو جائے گا۔ تو اس لیے ملاپ سے پہلے خصوصیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ صفوف کے ملاپ کے بعد طبعی خصوصیات متاثر ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹھوس ہو سکتی ہیں، وہ ٹھوس میں سالڈ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ذرات کا سائز نفوذ پذیری کو متاثر کرتا ہے اور ادویات کی حل پذیری متاثر ہوتی ہے۔ یہ نفوذ پذیری کیا ہوتی ہے؟ نفوذ پذیری کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز میں نفوذ کر جانا، داخل ہو جانا، انٹر ہو جانا، داخل ہو جانا، نفوذ کر جانا،
एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर खलत मलत हो जाना, दाखिल हो जाना, नफूज पजीरी। कहता है कि मतलब कोई चीज़ है ना, यहाँ पे ये चीज़, चले मैं इसी को एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा पाउडर है, अगर उसका साइज़ बड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ आपको कि ये साइज़ है ये वाला, तो यहाँ से अगर हम इसको दाखिल करेंगे तो दाखिल नहीं होगा। अगर साइज़ इतने के बजाय साइज़ छोटा हो जाए तो इसको हम दाखिल करेंगे तो ये दाखिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ज़रात का साइज़ बड़ा होगा तो वो नफूज दाखिल नहीं हो सकेगा, अगर ज़रात का साइज़ छोटा होगा तो उसका दखूल होना, दाखिल हो जाना, एंटर हो जाना, नफूज कर जाना आसान होगा। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि ज़रात का साइज़ नफूज पजीरी को मुतासर करता है, यानी कि अगर तो साइज़ बड़ा होगा तो नफूज पजीरी कम होगी, अपोजिट है, और अगर ज़रात का साइज़ छोटा होगा तो नफूज पजीरी ज़्यादा होगी। और ऐसे ही जब अद्वियात को, सफूफ को हम जिस्म में खा लेते हैं, निगल लेते हैं और जाके हमारे मैदे में चला जाता है और वो जिस्म का हिस्सा बनता है, तो वहाँ पे वो कहता है कि अद्विया की हल पजीरी मुतासर होती है। अगर साइज़ बड़ा होगा, सफूफ के ज़रात का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी हल पजीरी कम हो जाएगी, अगर सफूफ के ज़रात का साइज़ छोटा होगा तो हल पजीरी ज़्यादा हो जाएगी। ये हैं उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। अब तैयारी का तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है कि मुख्तलिफ मुनकस्मा सफूफ की तैयारी के दर्ज झैल तरीके हैं जो कि अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहले नंबर पे है हाथ से मिलाने का तरीका, यानी कि छोटा सा पाउडर, एक भी पाउडर की एक किस्म है, दूसरी भी किस्म है, हम उसको कैसे मिलाएंगे। एक भी अज्जा अद्वियात का एक जुज़ है, दूसरा जुज़ है, उसको कैसे मिलाएंगे। हमने दोनों को मिलाने से पहले पीसना भी है, बारीक भी करना है, ग्राइंड भी करना है, मिलाना भी है, मिक्स भी करना है, छलनी से भी गुजारना है, तो सारे काम करेंगे। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे नमक है ना, नमक हम बाज़ार से लेते हैं, बड़े वाला पत्थर वाला नमक, तो उसको पहले हम पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको छलनी से भी गुजारते हैं, ताकि जिस छलनी से गुजरेगा उसके मखसूस साइज़ होगा, और छलनी में से गुजरने के बाद उसी के मखसूस किस्म के ज़रात उसके नीचे चले जाएंगे, और जो बड़े साइज़ के ज़रात होंगे वो पीछे रह जाएंगे, उसको हम दोबारा उसको पीसेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल है कि सफूफ की तैयारी, इसमें नमक को बारीक करके ग्राइंड करके घर में रखना, ये एक जुज़ है, मुफरद सफूफ है। यहाँ पे मुफरद सफूफ की नहीं बल्कि मरकब सफूफ की बात कर रहे हैं कि वो एक से ज़्यादा अज्जा हैं और उनको मिक्स भी करना है, पीसना भी है, मिक्स भी करना है, मिलाना भी है, और छलनी से भी गुजारना है, और उसके बाद उसकी पैकिंग भी करनी है। ये 5-6 स्टेप हैं जो जहन में रखने हैं आपने। तो चलें पहले नंबर पे हम देखते हैं कि हाथ से मिलाने का तरीका, जिसे कहते हैं हैंड मिक्सिंग मेथड। इसके 2 पॉइंट जहन में रखें कि बेशतर अद्विया दानेदार कलमी शक्ल, क्रिस्टल, जिस तरह नमक लाते हैं, नमक को तोड़ते हैं तो उसके छोटे 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 दाने बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उससे क्रिस्टल्स को कहते हैं कलम। तो कहता है कि बेशतर अद्विया दानेदार कलमी शक्ल में होती हैं। अगर नमक के बड़े ज़रात होंगे तो उसे बड़ी कलमें कहेंगे, बड़ी कलमें या बड़े दाने होते हैं। इसको पीस कर यकसा साइज़ करना होता है, यानी कि जिस तरह हम घरों में नमक को पीस के यकसा साइज़ का बारीक नमक तैयार कर लेते हैं, तो ये पुराने दौर में यही होता था कि पत्थर वाला नमक लेके ना उसको बारीक करके पीसा जाता था, फिर छलनी से गुजारा जाता था। तो अब तो बने बनाए वो पैकिंग वाला जी 10 रुपये का जो पाउडर का पैकेट दे दें जी, 10 रुपये का पैकेट आ रहा है जी, 1 किलो का, 2 किलो, 3 किलो जी, इतना आ गया, तो पीसा हुआ मिल जाता है। लेकिन पहले दौर में हम उसको लेके पीसते थे घर में। तो वो कहता है कि यकसा साइज़ करना बेहतर है कबल इसके कि वज़न किया जाए या मिलाया जाए। कि ये जो हमने कहा ना मिलाया या मिलाप करना, मिलाप करने से और वज़न करने से पहले उसको क्या करना है जी, हमने उसको पीस कर यकसा साइज़ करना है। यकसा साइज़ में करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर है मिलाने का तरीका। कहता है मिलाने का तरीका स्पैचुला और रगड़ना वगैरह है। हाथ से उसको मिक्स भी कर सकते हैं, स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। स्पैचुला एक चम्मच की शक्ल का होता है, लेकिन वो गहरा नहीं होता, बिल्कुल प्लेन, एक सिंगल प्लेन में होता है और चम्मच से मिलता जुलता होता है। तो उसकी स्पैचुला से या फिर रगड़ना वगैरह ये है हैंड मिक्सिंग मेथड। अब बात करते हैं ये स्पैचुला से क्या चीज़ है स्पैचुला, तो इसी को अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने 2 पॉइंट ज़हन में रख लिए। अब है स्पैचुला या स्पैचुलेशन,
यहाँ से ये जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं ना स्पैचुलेशन, ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन, शिफ्टिंग और टम्बलिंग, या उर्दू में स्पैचुलेशन स्पैचुला से, पीस कर ब्रेक करना, मोटे और ब्रेक सफूफ को अलग करना, मतलातम करना, या टम्बलिंग, इनके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज भी एडजस्ट होते हैं, याद रखें। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में एक एक नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है जी, शिफ्टिंग क्या है, टम्बलिंग क्या है, ट्राइचुरेशन क्या है, स्पैचुलेशन क्या है, ये एक नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि सफूफ की तैयारी पर मुख्तसर नोट लिखें। तो अब हम देखते हैं कि स्पैचुलेशन क्या है, या स्पैचुला से देखें, इस तरीके में सफूफ की थोड़ी मिकदार को जिसके ज़रात यकसा साइज़ के हों स्पैचुला की मदद से या किसी स्लैब या टाइल वगैरह पर मिलाते हैं। इस तरीके में तखफीफी अमल होता है। सफूफ हमने पीस कर ब्रीक कर लिया, वज़न कर लिया, वज़न करने से पहले हमने क्या किया, यकसा साइज़ का ब्रीक सफूफ तैयार कर लिया। अब हमने उसको स्लैब पर या टाइल पर, ये ब्रीक सीधा बर्तन प्लेन स्लैब उसे कहते हैं या टाइल, उस पर रखा और स्पैचुला चम्मच की तरह की शक्ल का होता है, स्पैचुला की मदद से उसको मिक्स करेंगे, उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, तो यकसा साइज़ के स्पैचुला की मदद से क्या करेंगे, स्लैब या टाइल वगैरह पर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। अच्छा, इस तरीके में तखफीफी अमल होता है। इस तरीके में कौन सा अमल होता है जी, तखफीफी अमल होता है। ये दूसरा पॉइंट ज़हन में रखेंगे। तकसीदी अमल नहीं होता। अमल की दो इकसाम हैं जो ज़्यादातर होते हैं, एक होता है तकसीदी अमल, एक होता है तखफीफी अमल। तकसीदी अमल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, तखफीफी अमल रिडक्शन का प्रोसेस है। याद रखें, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम बाद में कि तखफीफी अमल क्या होता है। तो इसे वैसे कहते हैं जी रिडक्शन का प्रोसेस, एक होता है तकसीदी, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ये इसकी डिटेल अलहदा से वीडियो में आएगी, यहाँ तक आपने याद रखना है। उसके बाद है जी पीस कर ब्रेक करना या ट्राइचुरेशन, पीस कर ब्रेक करना। इसमें मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। पहले नंबर पे आपने क्या रखना है कि इस तरीके में जब ज़रूरत हो हावन दस्ता, हावन में डालकर हल्का हल्का पीस लेते हैं। यानी कि हावन होगा ना, चीनी का बना हुआ बाउल, चीनी का बाउल, उसमें रखेंगे, डालेंगे और ऊपर से दस्ता की मदद से हम उसको पीस लेंगे। तो पहले नंबर पे है कि इस तरीके में जब हमें ज़रूरत होती है उसको हावन में डालकर हल्का हल्का पीस लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि मुसलसल पीसने से लतीफ़ सफूफ, जैसे पीसते रहेंगे तो कौन सा सफूफ ब्रीक हो जाएगा, लतीफ़ हो जाएगा। तो मुसलसल पीसने से लतीफ़ सफूफ तैयार होता है, और मुसलसल पीसने से क्या होगा, सफूफ के ज़रात का साइज़ कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसके बाद कहता है रेज़न, कुछ हैं रेज़न वाली अशिया, उसको मुसलसल पीसने वाले अमल से मसला पैदा हो सकता है। क्या मसला पैदा हो सकता है, उसको मुसलसल नहीं पीसेंगे, क्यों, क्योंकि वो केक बन जाता है। तो हम कहते हैं कि रेज़न वाली अशिया में मुसलसल पीसने का अमल जारी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि इस तरह से केक बन जाता है। अच्छा, अब है बात करते हैं जी शिफ्टिंग की, यानी कि मोटे और ब्रीक सफूफ को अलग करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि नमक को ब्रीक करते हैं, फिर छलनी से गुजारते हैं, और छलनी से गुजारने के बाद जो छलनी के दानों का साइज़ होता है वो कुछ साइज़, उसी साइज़ का नमक नीचे गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो दाने बड़े होंगे छलनी से नहीं गुजर सकेंगे, वो ऊपर रह जाएंगे, उसको हम साइड पे कर देंगे। तो बिल्कुल यही प्रोसेस है कि मोटे और ब्रीक सफूफ को अलग करना, कि सफूफ को मखसूस किस्म की छलनियों में से गुजारेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि छलनी का नंबर होता है 0 से लेकर 2 से लेकर 8 तक, 20 से 30, 40 से 50, 60 से 80 और 80 से 120, ये नंबर होता है छलनियों का। तो मखसूस किस्म की छलनी से गुजारेंगे और उससे हमें मखसूस किस्म के ज़रात का साइज़ हासिल होगा, ये फ़ायदा है उसका। अब इसको दोबारा समझें। कहता है कि इस मकसद के लिए इससे फिर वो अलग-अलग ज़रात हो जाते हैं। जो मोटे ज़रात होंगे ऊपर आ जाएंगे, ब्रीक ज़रात गुजर जाएंगे, तो मोटे और ब्रीक ज़रात अलग हो जाएंगे। इस मकसद के लिए अदविया के अज्जा को छलनी में रख कर बुरश फेरते हैं। छलनी में रखा, बुरश फेरा, ताकि वो बुरश छलनी से नीचे गुजरता रहे। घरेलू इस्तेमाल की, कहता है कि इस मकसद के लिए घरेलू इस्तेमाल की छलनी भी अदविया में इस्तेमाल, घरों में जो आटा छानने के लिए यूज़ करते हैं छलनी, वो छलनी भी वो कहता है कि धोकर साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं।
फिर कहता है कि मखसूस, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि मखसूस छलियाँ इस्तेमाल करने से बेहतर नताइज बरामद होते हैं और सफूफ के ज़रात का साइज़ भी सही तौर पर मालूम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सफूफ जो 2 से 8 नंबर की छलनी में से गुजरेगा वो कहेगा बहुत मोटा सफूफ, और जो 10 से 20 में से गुजरेगा वो होगा मोटा सफूफ, जो 30 से 40 नंबर छलनी में से गुजरेगा वो सफूफ कौन सा होगा जी, दरमियाने दर्जे का मोटा सफूफ। इसका मतलब है कि मखसूस छलियाँ इस्तेमाल करने से हमें ज़रात, सफूफ के ज़रात का साइज़ भी सही तौर पर मालूम हो जाता है। इसके बाद है जी मतलातम करना या टम्बलिंग। कहता है इस तरीके में सफूफ को चौड़े से, सफूफ है चौड़े मुंह वाला बर्तन, कौन सा, तंग मुंह वाला बर्तन नहीं होगा, कौन सा बर्तन लेंगे, चौड़े मुंह वाला बर्तन लेंगे, उसमें सफूफ को डालेंगे, सफूफ को डालने के बाद फिर क्या करेंगे, घुमाएंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे हम उसको घुमाएंगे, घुमाने से जब पाउडर पहले नीचे होगा, ऊपर वाली साइड पे आएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर वाली साइड पे आएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रोसेस से वो मिक्स हो जाएगा। जब वो कंटेनर की दीवारों से टकराएगा तो वो मिक्स भी होता जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इसके भी 3 पॉइंट बनाए हैं, इसको ज़हन में रखें। पहले नंबर पे कहता है कि इस तरीके में सफूफ को चौड़े से मुंह वाले बर्तन में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद फिर उस कंटेनर के साथ एक लगी होती है मोटर। कहता है मोटर की मदद से इस बर्तन को घुमाया जाता है। बर्तन को घुमाया यानी कि वो अगर बोतल है, कंटेनर है, तो उसको गोल गोल मोटर के ज़रिए घुमाएंगे, गोल गुलाई में घुमाएंगे। ठीक है, अच्छा अब उसका फ़ायदा बयान कर रहा है। घुमाने से क्या होगा कि घूमने से सफूफ बर्तन की दीवारों से टकराता है और इस तरह सफूफ बारीक हो जाता है, बारीक भी हो जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। इस चीज़ को एक दफ़ा 2 दफ़ा रिवाइज़ करें और इसको खुद से लिख कर देखें। मैं अभी साइड पे हो जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि इम्तिहान के दिनों में आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और वो दोस्त जिनको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।